Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 5 through the eyes of the travelers. My dear student, in this chapter we are reading the accounts of the travelers. As you know that in this chapter there are three travelers you have to read. First, Al-Biruni and their accounts, Kitabul Hind, who came India during 11th century CE. Then after, Ibn Battuta, their account name is Rihala. He reached India during 14th century, and at last visitors, last travelers, the Francois Bernier. The Francois Bernier, who was Frenchman, who visited the Mughal court, and what he visited, what he observed, we try to explain in his text, their book. Francois Bernier explained the political condition, the society, the bazaars, social norms. In his text, their text name was, I have already informed you, their text name and written on board की उसने जो बुक लिखी ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ये जो बुक उसने इन सारी चीज़ों को बड़े ही तारतम्य से, बड़े ही सिस्टमेटिक रूप से लिखने का प्रयास किया था. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड आई होप यू हैव रिमेंबर दैट वी हैड कंप्लीटेड द Al-Birunis, and we will try to read today the very important topic of the Ibn Battutas. To understand today the next travelers, Ibn Battuta. I hope you have remembered that he was Moroccan traveler. Ibn Battuta मोरक्को का यात्री था, मोरक्को से आने वाला एक ट्रैवलर्स था जिसने तमाम सारी महत्वपूर्ण चीज़ों का उल्लेख किया. You will be following in the footstep of this famous 14th century's Muslim travelers, exploring the place he visited and the people he encountered. To help you learn more about his adventures, there will be image of the people and the place he saw, information on the food he might have tasted, and side trips into the past and future. Ibn Battuta started on his travels in 1325 when he was 20 years old. Okay, I hope in my last class I explained you that Ibn Battuta, he was born in Tangier. He was born in Morocco city Tangier, in the very intellectual and scholar family. So that's why he was also studied Islamic culture, Islamic rituals, Islamic text, and then after he decided to visit the very vast land of the world. He visited the different cities, Syria, Persia, and the different countries. And finally, he decided when he reached the western part of India, he heard the generosity of the Muhammad bin Tughlaq. He wanted to meet them. So that's why I am saying that when their age he was very curious to visit one place to other place. इन चीज़ों को उसने देखा, महसूस किया, और फिर when he was 20 years old, his main reason to travel was to go on what? Hajj, or pilgrims to Makkah, to fulfill the fifth pillar of Islam. But his traveling went on for around 29 years, and he covered about 75,000 miles, visiting the equivalently of 44 modern countries, which were then mostly under the government of Muslim leaders of the world of Islam, or Dar al-Islam. Okay, that is a very interesting fact that when he was born, तो उसकी जन्म का समय हमने
आपको बताया, हमने कहा था कि जब वो पैदा हुआ मोरक्को में, मोरक्को के एक शहर में, जहाँ जिसका नाम मैंने आपको बताया था टैंजियर, इट इज आल्सो मेंशन इन योर बुक। और फिर भारत आने के पहले तक 1333 तक उसने लंबी यात्राएं की, उसने एक लंबी दूरी तय। माय डियर, व्हाट आई वांट टू से यू, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट इन द एज ऑफ 20 years, okay, in the age of 20 years, he decided to visit Makkah. Okay, as you know that Makkah is a religious place. Makkah is religious place for Muslims. Their main aim to visit that place for किसके लिए? अपने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर वो मक्का जाना चाहता था, वो हज करना चाहता था. His main reason to travel was to go on a hajj. Okay, his main reason to travel on मक्का for hajj, धार्मिक कार्यों के लिए वो यात्रा करना चाहता था. फिर मैंने आपसे कहा कि धीरे धीरे यहीं से उसकी यात्रा का क्रम स्टार्ट हुआ और फिर उसने एक लंबी दूरी तय की. कहता है अराउंड 29 ईयर एंड ही कवर्ड 29 ईयर्स तक आते आते हैं अराउंड 29 ईयर around 29 years he covered 75,000 miles. 75,000 miles, 75,000 मील की दूरी उसने तय कर ली. इट इज वेरी स्ट्रेंज. आज के वर्तमान समय के करीब 44 जो कंट्री हैं, सेपरेट कंट्री हैं, जो कि अपने इस अस्तित्व में आज बने हुए हैं, उनको उसने तय किया. 29 years and is covered about 75,000 miles, reaching the equivalent of 44 modern countries. 75,000 miles. क्या किया उसने? 75,000 मील की दूरी कर ली, जो किसके है? जो इक्विवेलेंटली 44 मॉडर्न कंट्री आज वर्तमान समय के बराबर है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग कि उसने कितनी लंबी दूरी तय कर ली. कितनी दूरी तय करने के बाद कितने आज वर्तमान समय के 44 कंट्री 44 कंट्री के बराबर है. जो कंट्रोल कहते हैं मुस्लिम रूलर्स के बाद, मुस्लिम रूलर्स के बाद, जैसे दार इस्लाम. एक शब्द दिया गया है दार इस्लाम. कहता है कि 44 देश जो मुस्लिम शासकों के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, उस जगह पे उसने 29 साल की उम्र तक 75,000 मील की दूरी तय कर ली. भारतीय इतिहास में इतनी लंबी यात्रा करने वाला कोई भी मुस्लिम तीर्थयात्री नहीं है या मुस्लिम यात्री नहीं है. ये उसके बारे में एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सूचना है जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाती है. इसीलिए उसकी कुछ टाइटल्स हैं. ग्लोब टार्टर कहा गया इसे, लोनली ट्रेवलर्स कहा गया इसे, और इसे एक विचित्र यात्री माना गया. इसने उन सभी चीज़ों का कंपेरेटिवली स्टडी किया जो उसने देखा. एज आई टोल्ड कि उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, उसने क्या देखा, उसने कैसे उसको महसूस किया, इन सारी चीज़ों को उसने उस बुक में लिखा. ही मेट मेनी डेंजर and had the numerous adventures along the way. He was attacked by the bandits almost
the drawn in a sinking ship and nearly the beheaded by a Trojan ruler. He also had a few marriages and lovers and the fathered several children on his travels. Near the end of the Battuta's life, the Sultan of Morocco insisted that Ibn Battuta what dictate the story of his travels to a scholar, and today we can read translation of the account, which was originally titled the Tuhfat al-Anzar fi the Garabi al-Amsar wa Ajaib al-Asafir, or a gift to those who contempt the wonders of the cities and the marvels of the travelings. That title is a bit of the mouthful, so that text is generally just called Ibn Battuta's Rihla or journey. Okay, I am going to write the actual name of the Rihla, which was dictated by Ibn Battuta, and it was compiled by the scholars, Muslim scholars. A special request आया सुल्तान के द्वारा कि इब्न बतूता ने जिन चीज़ों को देखा है उन चीज़ों को क्या करे, उन चीज़ों को डिक्टेट करे और अपने अनुभवों के आधार पर एक बुक लिखे। मोरक्को के सुल्तान ने उसको इंसिस्ट किया कि आपको ऐसा करना चाहिए, और तब उसने उन चीज़ों को लिखा। टाइटल जो तैयार हुई किस टाइटल के नाम पे हुई? तुहफत। मैं जरा इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि नाम बड़ा लंबा है और वो आपको समझने में, इसी का नाम शॉर्ट में हम रिहला कहते हैं। आइए देखते हैं कि रिहला के एक्चुअल फॉर्म का क्या नाम है। रिहला इट मीन्स जर्नी। रिहला का मेन क्या है, उसकी बुक का नाम है, देखिए समझो, द ओरिजिनली टाइटल्ड तुहफत अल अंजार। तुहफत अल अंजार फी, तुहफत अल अंजार फी तुहफत अल अंजार फी, तुहफत अल अंजार फी गरीब अल अमसार व अजाइब व अजाइब अल अबसार अल अबसार। इस टाइटल से इसे अंग्रेजी में इसका नाम दिया गया, इसको सामान्य भाषा में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अ गिफ्ट टू दोज, अ गिफ्ट टू दोज who contemplate, who contemplate a gift to those who the wonders, the wonder of the cities, the wonders of cities, the wonders of cities and the marvels of traveling and the
Marvels of Traveling. Marvels of Traveling. ओके, ये उस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है. एक्चुअल बुक ये है, तोहफत अल अंजार फी घराइब अल अमसार वा अजाइब अल अफसार. ये है बुक का नाम, जिसको मोरक्को के सुल्तान के स्पेशल रिक्वेस्ट पे इब्न बतूता ने डिक्टेट किया और इस बुक को वहाँ के मोरक्कन स्कॉलर्स ने लिखा. और इस बुक को हम सामान्य भाषा में इंग्लिश में कह सकते हैं अ गिफ्ट टू दोज हु कंटेम्पलेट व्हाट. आप देखिए इस बुक के एक्चुअल नाम को जो हम इंग्लिश में कह सकते हैं, द हु कंटेम्पलेट द को थोड़ा दूर कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी. देखिए कितना डिफिकल्ट नाम है. The wonders of the cities and the marvels of the traveling. इसी बुक को सामान्य भाषा में क्या कहा गया, इसी बुक को the title is a bit of the mouthful, so that the text is generally just called Ibn Battuta's Rihala. Okay, this book just called Ibn Battuta's what? Rihala. Ibn Battuta's Rihala. Rihala it means journey. ओके, इब्न बतूता की यात्रा, इसी को रिहला कहा गया. देखिए बुक का नाम देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, कितना लंबा है. आसानी से इसे हम याद नहीं कर सकते यदि हम इस पर दिमाग ना ध्यान दें तो. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विच यू easily understand that what I am saying, what we are reading. I am telling that Ibn Battuta's, their account name Rihlaj means journey. It was especially what? Dictated by Ibn Battuta when the Moroccan Sultan insists them that you have to what? Write, you have to explain what you feel in the different cities, different countries which you visited. It is very useful for us when you will share your experience, share your what? The personal जो आपने महसूस किया, जो देखा आपने, यदि आप उन चीज़ों को शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ होगी. इस बात का उल्लेख उन्होंने किया. I hope you are getting understand कि near the end of Battuta's life, the Sultan of Morocco insisted that Ibn Battuta dictate the story of his travels to a scholar, and today we can read translation of that account, which we originally titled the Tawbat al-Anjar fi the Gharaib al-Amsar wa Azaib al-Absar, or a gift to those who contemplate the wonders of the cities and the marvels of traveling. So this is what we are reading. हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यही है. अभी थोड़ी सी एक जनरल हिस्ट्री हम इब्न बतूता के बारे में देख लेते हैं. हमने आई होप कि यू हैव रिमेंबर इन माई लास्ट क्लास व्हाट आई डिस्कस. इन माई लास्ट क्लास आई वाज डिस्कस दैट इन इंडिया Ibn Battuta have faced so many difficulties. Even when he reached Delhi Sultanate, he was appointed as a Nagar Qazi, he was appointed as a judge of Delhi by Ibn Battuta. Because he was very intellectual and a scholar person. But after some time, due to some misunderstanding, or in other words we can say that this
some allegation of corruptions imposed on them. So that's why the Sultan was very annoyed with them. So he decided what? क्या क्या? Decided that he imprisoned, उसको जेल में डाल दिया. But after some time, in 1342, the everything that had cleared, and he was restored as a ambassador of Delhi Sultanate. And कहाँ भेजा गया उसको? चाइना भेजा गया. So I hope you are getting what I am saying. This is the very interesting and important information of the Ibn Battuta. If you will see the last stage of the Ibn Battuta's life, what he spent in India, it is very difficult. Even he was not ready to go China, but क्या था? सुल्तान का प्रेशर था और उसे चाइना के लिए जाना पड़ा. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट बीच में बोट खराब हो गई, जहाज खराब हो गई और उसे वो वापस आ गया. फिर थोड़ी देर बाद व्हाट एक्सप्लेन इन योर बुक इफ विल सी, कहता है विद द न्यू असाइनमेंट Ibn Battuta proceeded to the Malabar coast through central India. From Malabar we went to the Maldives where he stayed for 18 months as the Qazi, but eventually decided to proceed to Sri Lanka. He then went back once more the Malabar coast and the Maldives. And before the resuming his the mission to China, visited Bengal and Assam as well, he took a ship to Sumatra, and from there another ship for the Chinese port town, the Jaitum, now known as Kyushu. He travelled extensively in China, going as far as Beijing, but did not stay for long. Deciding to return home in 1347, his account is often compared with that of Marco Polo, who visited China and also India from his home base in Venice in the late 13th century. Ibn Battuta की किताब एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट के रूप में जानी जाती है. उसकी किताब की तुलना, उसके बुक की तुलना 13th सेंचुरी के इटली के यात्री, वेनिस के यात्री मार्को पोलो से की जाती है. मार्को पोलो ने भी भारत और चीन की यात्रा की थी और उसने भारत और चीन के बारे में अपने बुक में लिखा था. जब 1347 में वो रिटर्न बैक होता है, कुछ डेट्स हैं जिनको आप मेंशन कर लीजिए, मैं बता दूं. ओके, आई थिंक कि इन चीज़ों को आप समझते हैं. बुक का नाम जो उसने डिक्टेट किया, डिक्टेट करने के बाद तोहफत अल अंजार थी, घराइब अल अंसार व अजाइब अल अफसार के नाम से वो बुक मोरक्को में लिखी गई, जो डिक्टेट किया था इब्न बतूता ने. इस बुक को अ गिफ्ट टू दोज हु कंटेम्पलेट द वंडर्स ऑफ द सिटी एंड द मार्वल्स ऑफ द ट्रेवलिंग के नाम से जानते हैं. इन शॉर्ट फॉर्म में हम उसे बतूतास रियला के नाम से जानते हैं, जो अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई, अरबी भाषा में लिखी गई, जिसे रियला को हम जर्नी कहते हैं. आइए इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लिख देते हैं इब्न बतूता के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण होगी, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी जब आप इब्न बतूता को लिखेंगे. ठीक है, तो उन डेट को भी आप मेंशन कर लें और प्लीज इसको भी नोट करें क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जब भी आप इब्न बतूता के द्वारा बताए गए जो इंफॉर्मेशन हैं, उनके जो उपलब्धियाँ हैं, उसको जो आप बताएंगे तो डेट मस्ट होता है आपको लिखना. इवन इन योर बुक दिस इज द वेरी लिटिल बिट फैक्चुअल डेट्स गिवन, टाइमलाइंस गिवन, बट आई वुड लाइक टू गिव यू द इम्पोर्टेंट डेट्स. जैसे इब्न बतूता का जन्म कब हुआ. इब्न बतूता 24 फरवरी he was born. He was born on 24th February 1304. Okay, and he died. He died on
1369 in Morocco, Africa. Okay, first information is that. Second information, he reached India. Okay, no. He started his traveling life in 20 years old. ओके, अपने यात्रा के क्रम में वो 30 साल तक क्या किया, 13 इयर्स की आयु तक वो चला. 13 इयर्स के इन द एज ऑफ 29 he covered 75,000 miles, 44 countries, 44 countries controlled by Muslim rulers. 75,000 miles area that was covered by him. Third information that is very important. Third information देखिए, in 1332-33 he reached Hindustan and appointed it means 1333 he reached Hindustan and appointed the Nagar Kaji or judge of Delhi. Of Delhi. After 8 years, he was what? The relation with the Sultan that was in the very कितने बहुत ही निम्न स्तर पे आ गया, डाउनफॉल हुआ, गिरा. He was imposed, he was एलिगेट्स, उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए, एलिगेशन लगाया गया कि वो करप्ट है. 8 साल बाद उसे जेल डाला गया, लेकिन फिर जल्दी ही 1342 जैसा कि मैंने आपको बताया, इन 1342 AD he was क्या किया गया उसको, दिल्ली के सुल्तान, he was proceeded to China. He was proceeded चाइना. और फिर पांचवा इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको दिख रहा होगा, या मैं फिफ्थ को यही लिखता हूं. और इन 1447 he decided to reach their own native land. तो ये डेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए. जैसे कब पैदा हुआ, he was born on 24 फरवरी 1304. फिर वो उसकी मृत्यु कब हुई, 369. 20 साल की उसकी उम्र थी, 20 ईयर्स की उसकी उम्र थी जब उसने ये डिसाइड किया कि वो यात्रा पर निकलेगा. उसकी पहली यात्रा मक्का की थी, हज की थी, और फिर धीरे धीरे वो यात्रा करने लगा. इन द एज ऑफ 29 साल की उम्र में उसने 75,000 मील की दूरी तय कर ली, और 44 देश जो मुस्लिम कंट्रोलिंग कंट्रीज, 44 कंट्रीज
उसको उसने विजिट किया। दार अल सलाम के नाम से जानते थे। 44 देश ऐसे थे जिसको उसने देखा। 1333 में वो कहाँ पहुंचा? हिंदुस्तान पहुंचा। और हिंदुस्तान पहुंचने के बाद उसे नगर काजी अपॉइंट कर दिया गया दिल्ली का। 8 साल नगर काजी के पद पर रहते हुए उसके संबंध सुल्तान के साथ थोड़े खराब हो गए, और सुल्तान के साथ संबंध खराब होने के बाद इब्न बतूता को जेल में डाल दिया गया। लेकिन 1342 का टाइम था जब सुल्तान और उसके बीच के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो समाप्त हुए, और फिर वो उसको प्रोसीड किया गया चाइना के लिए। चाइना में उसे अपना दूत बना के मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया। इस क्रम में उसने मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा जैसे देशों की भी यात्रा की, और फिर बीच में जब वो चाइना जा रहा था उसके जहाज खराब हो गए। जहाज के खराब होने का रिटर्न हुआ। फिर उसने अपनी दूसरी यात्रा शुरू की, और वो मालदीव में 18 महीने तक काजी के पद पे रहा। श्रीलंका वापस आया, और फिर श्रीलंका से उसने चाइना की तरफ मूव किया। चाइना की तरफ मूव करते हुए वो आसाम और बंगाल को विजिट किया, और फिर उसने चाइना के जायतून शहर, जो वर्तमान समय में आप क्योंझाओ के नाम से जानते हैं, क्योंझू के नाम से जानते हैं, वहाँ पहुँचा। वो बीजिंग पहुँचा, और बीजिंग पहुँचने के बाद यद्यपि वो बीजिंग में ज़्यादा देर तक नहीं रह सका, और बीजिंग में ज़्यादा देर तक न रहने के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगी, और वो अपने देश लौटने लगा। एज 1447 में अपने देश मोरक्को पहुँचा, और मोरक्को के सुल्तान के दबाव पे या उनके रिक्वेस्ट के लिए, या उनको इट मीन्स मोरक्कन सुल्तान इंसिस्टेड देम दैट व्हाट ही ऑब्जर्व ही शुड बी डिक्टेड, एंड क्या करें, दे वांट टू कंपाइल इन ए टेक्स्ट, एक बुक के रूप में उन्हें कंपाइल करने का प्रयास किया। तो ये पूरा क्रम था इब्न बतूता का। इब्न बतूता ने भारत में क्या देखा, भारत में क्या लिखा, बाजार के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, आप अगर सोर्स को देखें, उसकी 2 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं विच वी विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। First topic is that the postal system of Tughlaq period, and second point is that what he explained about Delhi city and Daulatabad city. Their information, their fact, what he given, that is the very important and fruitful for Indian history. Nowadays, we know Ibn Battuta as a lonely traveler. We know globe trotter. We know that he was very intellectual, but without any hesitation, we can say that he sometimes he was confused that what he is explaining. Actually, what the compile in their book Rihla, or what he dictate, that was कब हुआ? जब वो अपने देश पहुंचा, लंबे कार्यकाल, लंबे समय को देखा, फिर उसने पूरी घटनाओं को डिक्टेट किया। तो एक लंबे समय के बाद पूरी कहानी को बताना, निश्चित रूप से ऐसी कहानियों में कुछ न कुछ दोष तो आ ही जाएंगे, और इसीलिए हमें रिहला में कुछ दोष दिखाई देते हैं। बहरहाल रिहला एक अपने में यूनिक बुक है जो हमें 14th सेंचुरी की इंफॉर्मेशन को देती है। इट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर अस, इट इज़ अ वेरी ग्रैंड रिसोर्स टू अंडरस्टैंड द 14th century society, 14th century's cultural aspects, 14th century's economic activities and commercial centers, marketing hubs, bazaars, and also the political scenario. So that's why we are saying that it is a very unique and painful text which was compiled by them. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।